अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। एज यू नो दैट आज से हम 9th क्लास के बायो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। हियर्स द इंट्रोडक्शन। द ओरिजिन ऑफ वर्ड बायोलॉजी हैज बीन derived फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज दैट इज बायोस मीन्स लाइफ मतलब जिंदगी एंड लॉगोस मीन्स टू स्टडी मतलब उसे पढ़ना। Definition: it is natural branch of science which deals with the study of living organisms. बायोलॉजी में हम living organisms के बारे में पढ़ते हैं। Now, divisions. There are major 3 divisions of biology. Number A, zoology. Number B, botany. Number C, microbiology. Number A, zoology. The word zoology is derived from Greek word zoon means animals मतलब जानवर and logos means to study. So zoology is the study of animals. Number B, botany. The word botany is derived from Greek word butane. Butane means plants and logos means to study. Hence botany is the study of plants. Number C, microbiology. The word micro means small. So, the study of microscopic organisms as bacteria, algae, etc., which can only seen by microscope, such studies called as microbiology. Microbiology में हम वो organisms पढ़ते हैं जो हम हमारी present eye से नहीं देख सकते, बल्कि उन्हें हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। उन organisms की स्टडी को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। Now, branches of biology. Modern biology deals with structure, functions, and many other descriptions of living things. So, the division of biology has divided into the following branches. जो 3 डिवीजन मैंने आपको बताए, zoology, botany and microbiology, वो 3 डिवीजन सब ब्रांचेस में डिवाइडेड किए गए हैं और वो ब्रांचेस ये हैं। Number first is morphology. The word morphology is derived from Greek word that is morpho means form and logos means to study. So, the study of external form and structure of organism is called as morphology. एक इंसान की एक्सटर्नली बनावट कैसे है, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, उसको हम स्टडी करेंगे मॉर्फोलॉजी में। Number second is anatomy. The word anatomy is derived from Greek word ana means part up and tom means cutting. The study of internal parts of body by cutting them to open. अब क्या होता है, मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल फॉर्म की स्टडी करते हैं, लेकिन एनाटॉमी में हम इंटरनल फॉर्म की स्टडी करते हैं। लेकिन वो कैसे? बॉडी के जो पार्ट्स है, जो ऑर्गन्स है, उन्हें हम पहले कट करते हैं, फिर ओपन करते हैं, फिर उनकी स्टडी करते हैं। नंबर थर्ड इज सेल बायोलॉजी. The word cell is derived from Latin word carrion means compartment. Compartment का मतलब है एक छोटा सा part, एक छोटा सा हिस्सा. And biology, as you know, that study of life. So it is the study of cell and its organelle. आप पिछले क्लासेस में ये पढ़ के आए होंगे कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सो सेल से हमारी जिंदगी बनती है, तो सेल की स्टडी को हम कहेंगे सेल बायोलॉजी. अब आप कहेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है ऑर्गेनल्स. ऑर्गेनल्स क्या है? सेल के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है, उस हर एक मटेरियल को हम कहेंगे ऑर्गेनल. उसकी स्टडी भी हम सेल बायोलॉजी में करेंगे. नंबर फोर्थ इज हिस्टोलॉजी. द वर्ड हिस्टोलॉजी इज derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड histo means tissue and logos means to study. The study of tissue of plants and animals is called as histology. अब टिश्यू क्या है? The collection of cells is called as tissue. बहुत सारे सेल्स आपस में मिलके एक न्यू स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं टिश्यू, और इसी टिश्यू की स्टडी को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी. Number fifth is physiology. The word physiology is derived from Greek word physis means nature मतलब फितरत and logos means to study. The study about functions of living organisms. एक living organism अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में कैसे फंक्शंस परफॉर्म करता है, वो हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में. Number 6 is
Taxonomy. The word taxonomy is derived from Greek word taxis means arrangement and nomos means name. The study of rules, principles, grouping and naming of living organisms is called as taxonomy. साइंस में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग साइंटिफिक नेम है और उसी साइंटिफिक नेम को देने के लिए हमारे पास साइंस में कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो हम स्टडी करेंगे टैक्सोनॉमी में. मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना. ये जो हमने उसे नेम दिया है, ये ऑन द बेसिस सम रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल्स के हिसाब से दिया है. उसी स्टडी को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी. नंबर 7 इज जेनेटिक्स. द वर्ड जेनेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड जेनेसिस मीन्स डिसेंट्स और ओरिजिन. द स्टडी ऑफ हेरिडिटी. हेरिडिटी मतलब वरासत, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है. या लिखा हुआ है दैट इज ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स. अब हर बच्चा अपने अपने माँ बाप जैसा है, वो इसलिए क्योंकि हमें हमारे पेरेंट्स की हेरिडिटी मिली है, और उसी स्टडी को हम कहेंगे जेनेटिक्स. नंबर 8 इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी. इट इज ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियोलॉजी. द वर्ड एम्ब्रियोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एम्ब्रियन मीन्स एम्ब्रियो and logos means to study. The study of formation and development of embryo is called as embryology or developmental biology. अब आप कहेंगे ये embryo क्या है? So, embryo is the conversion of zygote into a new structure called as embryo. zygote होता है, ये आपने पहले पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता देती हूँ कि जब मेल और फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं. मेल डोनेट करता है स्पर्म और फीमेल डोनेट करती है एग. जब स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं जाइगोट. जाइगोट आगे चल के कन्वर्ट होता है एक न्यू स्ट्रक्चर में जिसे हम कहेंगे एम्ब्रियो. ठीक है, और इसी एम्ब्रियो की स्टडी को हम कहेंगे एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी. Number 9 is environmental biology. Study of relationship between living organisms and non-living factors of environment and their effect is called as environmental biology. अब देख लें हमारी सराउंडिंग में हमें क्या कुछ नहीं मिलता. एयर मिलती है, वाटर मिलता है, ऐसी बहुत सारी नॉन लिविंग फैक्टर्स है जो हमें मिलती हैं. अब हमारे उनके साथ क्या रिलेशनशिप है? एयर में से हम ऑक्सीजन गेन करते हैं, वाटर हमारी बॉडी की बेसिक नीड है, तो ये हमारा नॉन लिविंग फैक्टर से रिलेशनशिप हो गया, और इसी स्टडी को हम कहेंगे एनवायरमेंटल बायोलॉजी. नंबर 10 इज पैलेंटोलॉजी. द वर्ड पैलेंटोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड पैलियोसिस मीन्स एंशिएंट मतलब कदीम, पुराने, ओल्ड, एंड ऑन्टोस मीन्स बीइंग, एंड लॉगोस मीन्स टू स्टडी. द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑफ ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड एज पैलेंटोलॉजी. फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स वो है जो आज की दुनिया में प्रेजेंट ना हो लेकिन पास्ट में वो प्रेजेंट थे, और उन्हीं की स्टडी को हम कहेंगे पैलेंटोलॉजी. नाउ नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी. Study about techniques for manipulation of gene to bring some changes in structure and location of gene called biotechnology. वो टेक्निक्स जिसमें हम एक जीन में कोई चेंजेस लाएं उसके स्ट्रक्चर में और लोकेशन में, उसे हम कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी. अब जीन क्या है? जीन एक ऐसी चीज है जो कि हर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, जो हमें एक कैरेक्टर देती है. कैरेक्टर का मैं एग्जांपल आपको दे दूं कि जैसे हमारी आईज है. अब आईज का जो आई बॉल है उसका कलर हर किसी का डिफरेंट होता है. किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ग्रीन होता है. तो ये हर एक का कलर डिफरेंट है. सही है. अब हम अगर जीन को चेंज करें, उसमें कोई चेंजेस लाए, सपोज किसी के आई के जीन का कलर ब्लैक है, हम चाहें कि उसे ब्राउन कलर दे, तो ये जिस टेक्निक में होगा उस टेक्निक की स्टडी को हम कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी. नंबर 12 इज पैरासिटोलॉजी. द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड एज पैरासिटोलॉजी. अब पैरासाइट क्या है? वो ऑर्गेनिजम्स जो किसी और पे डिपेंड हो. किस लिए डिपेंड हो? फॉर द पर्पज ऑफ फूड हासिल करने के लिए, एंड शेल्टर हासिल करने के लिए. नंबर 3 इज सोशियोबायोलॉजी. द वर्ड सोशियोबायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड sociare means to associate and biology means study of life, the study of living organisms, that is interaction between them.
एनवायरमेंटल में हमने क्या पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग से रिलेशनशिप है, लेकिन सोशो बायोलॉजी में हम ये पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशनशिप है। सही है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं कि जैसे गॉट है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। वो क्या खाती है? पौधे खाती है, ठीक है, ग्रास खाती है। अब ग्रास क्या है? प्लांट है, तो वो भी लिविंग है। अब ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो इनका आपस में ये एक रिलेशन हो गया, वो हम पढ़ेंगे सोशो बायोलॉजी में। सही। नंबर 14, फार्माकोलॉजी। द वर्ड फार्माकोलॉजी इज derived from Greek word pharmakon, means drugs, and logos means to study. The study about action of drugs is called as pharmacology. अब ड्रग्स कैसे? ड्रग्स का मतलब यहाँ पे दिया गया है मेडिसिन। हम जो मेडिसिन खाते हैं वो हमारी बॉडी में कैसा एक्शन करती है, उस एक्शन की स्टडी को हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में। नंबर लास्ट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स व्हिच कंस्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स। अब सेल हमारा बेसिक यूनिट तो है, लेकिन वो बना हुआ है कुछ मॉलिक्यूल से। अब उस मॉलिक्यूल्स की स्टडी को हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।